اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں آپ سے کہ ایکتا میں ہی سب کچھ ہے. یہ بھارت جو ہے ایک دھرم کا نہیں ہے، یہ ہے انیکتا میں ایکتا. یہاں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، بدھ بھی ہے، سوراشٹرن بھی ہے. کون نہیں ہے؟ وہ بھی ہے جو کسی دھرم کو نہیں مانتا. یہی اس خوبصورتی اس دیش کی. اس دیش کی خوبصورتی اس لیے دنیا دیکھنے آتی ہے کہ یہ لوگ رہتے کیسے ہیں، کیسے رہتے ہیں. مگر آج کی حکومت جو دلی میں ہے وہ ہم کو توڑنا چاہتی ہے. ارے مجھے بتاؤ یار، اگر ہندو جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو پیٹ میں مروڑ لگنے لگتے ہیں، تو ڈاکٹر کیا جو گولی دے گا دوائی کی وہ اس کے لیے الگ ہے، اور مسلمان کو الگ ہے، سکھ کے لیے الگ ہے. وہی دوائی جو ہے سب کو ٹھیک کرتی ہے. میں یہ بار بار کہتا ہوں ڈاکٹر ہو کے، جب ہم ہسپتال میں جاتے ہیں اور ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے تو جو خون آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے اس بوتل سے، کیا کبھی آپ اس خون کی بوتل سے پوچھتے ہیں یہ برہمن کا خون ہے، یہ مسلمان کا خون ہے، یہ سکھ کا خون ہے، یہ دلت کا خون ہے؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بوتل سے بڑا ٹھیک ہو گیا، دوسری بوتل لگاؤ. مگر جو ہی آپ ہسپتال سے باہر نکل جاتے ہیں آپ مسلمان بھی بن جاتے ہو، ہندو بھی بن جاتے ہو، سکھ بھی بن جاتے ہو، انسان نہیں بنتے. ارے یاد رکھنا میری بات، میں مسلمان ہوں، میرا خدا مسجد میں نہیں ہے. مسجد صرف ایک جگہ ہے جو پاک جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا بھگوان مندر میں نہیں ہے. جب تک آپ یاد رکھیں گے وہ بھگوان آپ کے دل میں ہے، دل میں، ہر حصے میں ہے. وہ شاعر بہت اچھی بات کہتا ہے کیوں ڈھونڈتے ہو اس کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تمہارے دل میں نہیں وہ تمہارے لیے کہیں بھی نہیں. اس کو اپنے دل میں پیدا کرو. جس دن تم سچے ہندو بنو گے، سچے مسلمان اور سچے سکھ بنو گے، تمہیں کبھی فرق نہیں لگے گا یہ کس دھرم کا ہے، یہ کیا ہے. بس یہ جانو گے یہ اسی کو مانتا ہے جس کو ہم مانتے ہیں. نفرت کا وقت نہیں ہے، نفرت ہمیں کمزور کرے گا. عمر صاحب نے 6 مہینے میں کیا نہیں کیا؟ جو چلا کہتے ہیں کیا کیا؟ ارے تم نے 10 سال میں کچھ نہیں کیا اور ہم سے سمجھتے ہو 6 سال میں آپ تارے نیچے لائیں گے. افسوس میں مانتا ہوں کہ مخالفت کرنی ہے سیاست میں، مگر اتنے بھی نیچے نہ گرو کہ تم دیکھ نہیں سکو. روتا صاحب نے بہت کچھ کہا، مگر ابھی کام بہت کرنے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے کام بند ہو گئے. ابھی آپ کی زندگی کو آگے لے جانا ہے، آپ کی غریبی کو دور کرنا ہے، آپ کے محنت کا پھل آپ تک پہنچانا ہے. وہ ہمارا کام ہے. اسے گھبرائیے مت، کہ کہیں جو کہنا ہے. ہم لوگوں نے جو راستہ لیا ہے وہ راستہ ہم نے لیا ہے کہ میرا خدا بھگوان انسان میں بستا ہے، اور اگر میں اس کی سیوا کروں گا میں بھگوان کی سیوا کروں گا. اسے یہ ساتھ رکھے گا کہ اس کی طرف ہم نے چلنا ہے. ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں نا 10 لوگ جا رہے ہیں، 12 لوگ جا رہے ہیں، یہ صرف لوگوں کو، یہ کانگریس کے زمانے میں بھی کہتے تھے جا رہا ہے. ارے جا تو تم ہی رہے ہو، تمہارا جنازہ بہت تیار ہے، پرواہ مت کرو. آ رہا ہٹلر، کہاں رہا مسلونی؟ کہا گیا جھوٹ تھوڑے وقت چل سکتا ہے اور یہ وقت نہیں چل سکتا. بتائیے کہاں ہے وہ 15 لاکھ؟ میں روز اکاؤنٹ سے پوچھتا تھا مینیجر سے، جناب وہ 15 لاکھ آ گئے؟ پھر کیا کہتے ہیں میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، ہمیں ہوم منسٹر کہتے ہیں یہ ایک جملہ. ارے یار تو الیکشن کے لیے تم نے جملے استعمال کرنے. یہاں گھر گھر گئے اور کہنے لگے دیکھو مسلمان تمہارے لیے خطرہ ہے، ہمیں ووٹ دو.
अफसोस तो मुझे इस बात का है, यहां सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है, मुसलमान को खतरा हो सकता है, कम है। मैं बार बार ये कहता था, हर वक्त ये कहता था कि अगर यहां मुसलमान को कोई बचाएगा तो हिंदू भाई और बहन बचाएगा। अरे कश्मीर में हिंदुओं को बचाएगा तो वो कश्मीर का मुसलमान बचाएगा, फौज और पुलिस नहीं बचा सकता। उस चीज को हमने कायम करना है, हमने पाकिस्तान को दिखाना है। पाकिस्तान के जिन्ना साहब समझते थे हम उनकी जेब में हैं, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, कहां जाएंगे मुसलमान जो है, कहां जाएंगे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, कहां जाएंगे? उसने नहीं माना, उसने कहा सवाल ही नहीं है, उसके सामने हम सब बराबर हैं। और गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ा, उस हिंदुस्तान के साथ जहां हम सब प्यार से और मित्र से रह सकते हैं। उस मित्रता को हमने कायम करना है, अपने घर में, अपने गांव में, हर चीज में। मैंने वो दिन देखे हैं जहां मैं एक दफा स्कूल में पढ़ता था 10वीं जमात में, तो मुझे वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का था वो एक मंदिर का पुजारी भी था, उसका बेटा मेरे साथ पढ़ता था। एक दिन उसने मुझे कहा, यार घर आओ मेरा खाना, मैं ऐसे खाना खा। जब खाना लगा तो ये वो जहां खाना बनता है वो बहुत पवित्र जगह है, उस पर वो गोबर और मिट्टी से वो लिपाई करते हैं। तो उसके माँ ने उसका वो जो खाना है उसके अंदर लगाया, और मेरे लिए चौकी बाहर लगाई और मेरे लिए वो थाल जो है वो बाहर लगाया। मैंने उठाया थाल और चौकी, मैं उधर चला गया, जरा त्राही भगवान त्राही भगवान त्राही। मैंने कहा, माँ मुझे तू ये बता, क्या मेरी 10 उंगलियां है, इसकी 20 है? क्या मेरी 2 आंखें हैं, इसकी 4 आंखें हैं? मैंने कहा, मां मुझे बता, मेरे में और उसमें फर्क क्या है? कुछ नहीं कह सकते। बेटा मैं गलत हूं, भैया हम लोगों ने ये फर्क पैदा किया है, ऊपर वाले ने फर्क नहीं पैदा किया। याद रखिएगा, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि ये अलग है ये दूसरा है, बराबर कैसे सोचा। इसलिए महात्मा गांधी आखिरी दम तक यही कहते थे, मैं राम राज चाहता हूं, राम राज चाहता हूं, राम राज। इस राज में हम सब लोग बराबर रहें, तरक्की करें, इज्जत से रहें, मेरी मां बहन चल सके। आज क्या हाल? आज हाल ये है कि दलित की बेटी उसको नंगा नचाया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर मारा जाता है। क्या ये हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान में जो राम को मानते हैं और अल्लाह को, ये हो सकता है? मगर हो रहा है। क्या उनको हक नहीं है चलने का? भाई लोगों, हमने इसका मुकाबला करना है। जहां तरक्की करेंगे वहां इसकी तरफ भी देखो, अपने धर्म को मजबूत करो। धर्म के बगैर कुछ नहीं है। आप 200 साल भी जियोगे तब भी उसी के पास जाना है, ये सारा यही रह जाएगा। सिर्फ जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उसके पास जाएगा। वहां किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, मेरे बाप की सिफारिश है, मेरी मां की, मेरे बेटे की, मेरी बहन की, कोई सिफारिश। वहां वो है और मैंने क्या अच्छा किया वो आएगा। इसे आपसे कहता हूं, आज मोहनलाल जी और उसके साथी शामिल हो गए। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का कि अगली दफा इलेक्शन आएगा तो मोहनलाल जी आपके जरूर न सिर्फ एमएलए होंगे बल्कि आपके मंत्री होंगे। उसके लिए हमें काम करना, इसको मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए आज से। मैं और दूसरा ये कहूं बहनों को खासकर, बहनों जब तक तुम घर से नहीं निकलोगी, तुम इनका दामन नहीं थामोगी कि आगे चलना है, बहनों तब तक कुछ नहीं बनेगा। क्योंकि बहनें जो हैं वो 50% तो बहनें हैं। और दूसरा ये कहूंगा जवानों से, हमें कल के लिए जवान तैयार करने हैं। जवान ही भारत की ताकत है।
उस भारत की ताकत को अगर मजबूत करना है तो जवानों को आगे आना है। और मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा तो सदर बने, इन लोगों से ताल्लुक रखो, यहाँ आओ, बार बार आओ और यहाँ जवानों को आगे लाओ। और क्योंकि आज ये हैं, कल हमें जवान चाहिए जो जब इनका काम हो जाएगा। ये हैं, कल इनको जाना है, दूसरा है, ये हैं, हमने उनको तैयार करना है जो इस हिंदुस्तान के ताज को, मुकुट को बचा सके, वो करना है। इसे उस मुकुट को बचाने के लिए हमें जवान मर्द और औरतों को आगे लाना है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, आगे आइए, विमला से कहूंगा, काम करो, मेहनत करो, जवानों को लाओ, आगे चला। लक्ष्मी दत्ता यहां बैठी, उनसे कहूंगा, सब जो बैठी है, घर में बैठने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहनलाल जी, प्रभु आपको सलामत रखे, सेहत दे, कामयाबियां बख्शे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें और जितना हमसे हो सकेगा हम आपको मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू। रामबन जो हुआ सर, माइक देना, माइक देखिए, इसीलिए जनाब जो रामबन में हुआ है बहुत सख्त नुकसान हुआ है। अभी तक तो 3 लोगों की मरने की खबर आई है। कई गाड़ियां जो हैं वो पहाड़ के नीचे दब गई हैं। उसके साथ साथ जबरदस्त नुकसान वहां हुआ है। एक पुल जो था टनल से निकल के वो पुल भी गायब हो गया है और बानिहाल में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसीलिए आज वो भी दौड़ गए हैं, अभी मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं और दूसरे भी जाने वाले हैं कि वहां के कश्मीर से भी हमारे मंत्री आ रहे हैं, वो पहुंच गए होंगे वहां बानिहाल। उसके बाद ये रामबन पहुंचेंगे कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकती है, क्योंकि ये डिजास्टर है। इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका किसी हद तक हम पूरा कर सकें। सर, इसी के साथ बीजेपी के जो एमपी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि इफ जुडिशरी वांट्स टू मेक लॉ देन देयर इज नो नीड फॉर पार्लियामेंट। आप इस रिमार्क को किस तरह से देखते हैं? आई एम सॉरी दैट दे मेकिंग दिस रिमार्क। देखिए, 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी: पार्लियामेंट, जुडिशरी इज द टॉप मोस्ट, एग्जीक्यूटिव। ये चीज डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है। अगर कोई गलत कानून आ गया तो हम लोग पार्लियामेंट में जाकर, इस सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके सामने दलील रख सकते हैं और वो दलील को सुनते हैं। ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर को ऐसी बात करना समर्थन गलत है, उन्हें इसे दरेक करना चाहिए। सर, ये वक्फ बिल से जो कानून जो उसकी भी देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में है, इसे सब जुडिस है, उसमें मैं से कुछ नहीं कहूंगा जब तक कि उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा। उन्हें आज तक रोक दिया है। कुछ सवाल उनने मरकज से किए हैं जिनका जवाब आएगा। जब वो जवाब आएगा, देखिए वायलेंस इसलिए आएगा क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों के घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर था? क्या साबित कर सके? एक चीज साबित नहीं कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाए इनने? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। ये मुझे अफसोस है। मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल छोटी सी, कि जम्मू सिटी में अभी गर्मियां बहुत ज्यादा है, तो जम्मू सिटी में पानी की बहुत दिक्कत है। समझिए, 2 चीजें आपसे कहूंगा, सिर्फ पानी की किल्लत नहीं है, बिजली की भी है, बिजली की किल्लत है। यही तो मुसीबत है कि जनाब हमारी बिजली कहां जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या किया? एक बिजली घर राजस्थान को दे दिया, एक बिजली घर यूपी को दे दिया,
कहाँ जाएंगे हम? क्या हम लोगों का फर्ज है? हमारा पानी पहला हक हमारा है इस पे। मैंने दस्तखत किए, 9 प्रोजेक्ट बनने थे। उन्हें कहा हम काउंटर गारंटी नहीं देंगे आपको। कुमार मंगलम थे मिनिस्टर, मगर आप 2 बनाइए, 7 हम बनाएंगे और उसमें एक चीज बनाई, बूथ हम बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको उसका पैसा जो हमने लिया है वो ले लेंगे, फिर आपको ट्रांसफर कर देंगे। क्या कहाँ किया हमने? क्या किया जिस पे मैंने दस्तखत किए हैं एज चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर ने वहां दस्तखत किए हैं? क्या किया उसका? पानी, उसी पे तो हमने वो अब कमेटी बनाई है, उसका काम शुरू है। आप देखेंगे कितनी चोरी उसमें की गई है, मगर आपके जम्मू वालों ने कोई शोर नहीं किया, चुपचाप बैठे। दरबार गया, दरबार मेरे नहीं था, दरबार जम्मू के और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का महाराज ने किया था। जब मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को समझ सके, उसमें हमारा था दरबार। पहला काम इन्होंने किया, दरबार खत्म किया। इंशाअल्लाह हम दरबार फिर शुरू करेंगे, हिंदू मुसलमान को फिर से जोड़ेंगे। दुल्लत साहब ने कहा कि दुल्लत साहब को नेशनलिस्ट है, में वहाँ गए नहीं, क्या नाराज है आप? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।